This is the same chapter we have in mathematics. Similar chapter है. Means इसका थोड़ा सा हिस्सा mathematics में भी आएगा. So that's the reason ये chapter सिर्फ physics के लिए important नहीं है, ये mathematics के लिए भी important है. So scalars vectors we started in 9th standard. If you remember, 9th standard में scalar vectors का introduction हुआ था. So anyone can tell me what are the scalar quantities? Those quantities which has magnitude alone is called as a scalar quantity. Example के लिए area, volume, mass. These are all scalar quantities. Okay, those which has magnitude alone is called scalar quantity. Now, vector quantities are those quantities which has magnitude and direction both. So vector quantities are those quantities which has magnitude and direction both. So in 9th standard we started with this topic. हमने laws of motion chapter में ये topic start किया था. That is scalar quantities का example के लिए हमने पहला example लिया था distance. So distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. A similar distance is a scalar quantity. A similar vector quantity over here, which has magnitude and direction both, is called as displacement. Displacement is a vector quantity which has magnitude and direction both. Okay. Now, what is the difference between a distance and a displacement? Displacement and distance are same thing, but इसके अंदर direction भी आता है. What is the definition of distance? It is the actual path traveled. Distance का definition था actual path traveled. Displacement का definition क्या था? It is a distance between the initial and the final point. Okay, so here, for example, if I have traveled on a circle with circumference 300 meter. Okay, there is a circle of circumference 300 meters. 300 meter का circumference है. So tell me what is the distance traveled? क्या distance traveled क्या रहेगा? अगर 300 मीटर का सर्कल है, circumference है, तो distance traveled क्या रहेगा? It will be 300 मीटर. ठीक है? But अगर मैंने एक पोजीशन से स्टार्ट किया है, घूम के मैं वापस एक पोजीशन पे आ गया. So now tell me what is the displacement? Zero. Zero. Why displacement is zero? Displacement is zero. Why the displacement is zero? Distance traveled is the actual path traveled. Displacement क्या था? It was the distance between initial and final point. तो यही मेरा initial point है. मैं वापस इधर ही आया, यानी यही मेरा final point है. So therefore, the distance traveled is 300 meter, but the displacement is 0 meters. Okay, just an example. ये तुमने 9th में already कर चुके हो. So the first scalar quantity we studied is distance. Similar vector quantity is displacement. Next scalar quantities, anyone remembers? Anyone remembers the next scalar quantity? Speed. Speed, very good. Speed. And उसी का vector quantity क्या रहेगा? Velocity. Velocity. Very nice. ठीक है. Now speed and velocity में क्या difference है? Tell me. Yeah, anyone? Speed equal to Distance distance upon time. Very nice. And velocity क्या होता है? Displacement upon time. So velocity has not only magnitude but it has also direction. Okay. So speed, velocity. Next vector quantities. Some more vector quantities are acceleration. What is that? The rate of change of velocity. That is also vector quantity. Next is force, which is mass into acceleration. Because acceleration is vector, so force is also vector quantity. Next is torque. Torque is r vector cross s vector, यानी displacement vector and force vector का multiplication है. ये आने वाला आगे जाके, but ये vector quantity नहीं है. क्यों नहीं है? Because ये भी vector है, ये भी vector है. Vector into vector becomes scalar. तो उसके लिए work, force into displacement scalar है. Torque, force into perpendicular distance scalar है. ठीक है? So there are certain scalar quantities, there are certain vector quantities. Once again, what are called as scalar quantities? Those quantities which have magnitude alone, those quantities which have magnitude and direction both are called as vector quantities. इसका units रहेगा, magnitude रहेगा, but इसके अंदर direction
रहेगा, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं रहेगा. Now here scalar quantities, vector quantities are represented by an arrow above it. हम लोग उसके लिए ना एक एरो सिग्निफाई करते हैं, ठीक है. दैट इज नाउ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब होता है वेयर द मैग्नीट्यूड इज जीरो. ओके, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर. उसमें डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड जीरो है, वो सिर्फ पॉइंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड उसका लेंथ जीरो है, सो इट इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर, the resultant of two or more vectors is that a single vector. For example, this is a vector, this is b vector, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, so therefore resultant vector is a vector plus b vector. जो दोनों वेक्टर को साथ में सिग्निफाई करेगा, this is called as the resultant vector. Okay, the resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together. नेगेटिव वेक्टर, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, तो मेरे को माइनस ए वेक्टर चाहिए, तो माइनस ए वेक्टर कैसे सिग्निफाई करोगे, बस डायरेक्शन उल्टा कर देना. दिस इज कॉल्ड एज माइनस ए वेक्टर. सो नेगेटिव वेक्टर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन. ओके, डेफिनेशन लर्न करो. A negative vector of a given vector is a vector of the same magnitude, magnitude is same but opposite in direction. Equal vectors, when are two vectors said to be equal? It's very easy. When are two vectors said to be equal? If they have the same magnitude, इनका लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, then they are said to be equal vectors. So when are the vectors said to be equal? When they have the same magnitude as well as same direction. Okay, next, position vector. Now position vector is an important word. So this is the axis, this is the point A. Okay, इस point A को signify करने वाला vector from origin is called as OA vector. O से start हो रहा है, OA vector, which is also said to be A vector. This A vector is called as position vector. Okay, so हमेशा के लिए याद रखना, position vectors are those vectors which start from origin, so they are called as position vectors. Okay, next, unit vector. Now unit vector, now this is very interesting. Unit vector क्या करेगा? For example, ये मेरा vector है जिसका magnitude assume करो 5 मीटर है. This vector is A vector. तो मेरा यूनिट वेक्टर क्या करेगा पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. ये मेरा यूनिट वेक्टर का सिंबल ऐसे लिखते हैं. दिस इज हाउ वी राइट यूनिट वेक्टर. वेक्टर्स हम लोग ऐसा मार्क करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर उल्टा डायरेक्शन है तो ऐसा वेक्टर नहीं मार्क करते, ये गलत तरीका है लिखने का. वो डायरेक्शन कोई भी अपन वेक्टर ऐसा ही मार्क करेंगे. दिस इज हाउ वी मार्क अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का जॉब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है. तो यूनिट वेक्टर का जॉब है सिर्फ वो डायरेक्शन पॉइंट करता है, ठीक है, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज 1. वो लेंथ एक्चुअल में कितना भी बड़ा हो, पर यूनिट वेक्टर सिर्फ उनको डायरेक्शन दिखाएगा. सो इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड in a direction is called a unit vector. If when vector is a non-vector, its magnitude m is capital M is equal to 0, then अच्छा unit vector का formula भी देके रखा है, so I'll just explain you. देखो, a vector is made up of two things. First, it is made up of a magnitude. This symbol signifies magnitude. अपन मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आर लिखोगे तो भी मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसा लिखोगे तो भी मैग्नीट्यूड. इसी अभी हम लोग ये नया चीज सीख रहे हैं, स्केलर्स वेक्टर्स, इसमें नए सिंबल्स आने वाले हैं. सो यू हैव टू गेट अकस्टम्ड टू दीस सिंबल्स. ओके, सो नाउ मैग्नीट्यूड हम लोग सिंपली आर लिखेंगे तो भी मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड यानी ये जो 5 मीटर लिखा है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो मैग्नीट्यूड हम लोग आर लिखो या मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखेंगे, इसको भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं. So any vector, अगर मैंने ये वेक्टर R वेक्टर, any vector is made up of two things. The vector is made up of a magnitude and it is made up of a direction.
इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्यों इसको डायरेक्शन बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट इसका जॉब क्या है? ये डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर यानी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 5 मीटर? 1 मीटर को 5 टाइम्स, 5 मीटर यानी क्या होता है? 1 मीटर को 5 टाइम्स इज कॉल्ड 5 मीटर। तो 1 मीटर यूनिट है ना, उसको 5 टाइम्स यानी मैग्नीट्यूड है। यूनिट को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते, 5 मल्टीप्लाई करते तब तो 5 मीटर बनता है ना। तो ये 5 मीटर में क्या क्या है? ये वेक्टर में क्या क्या है? तो व्हाट इज दिस वेक्टर मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी 5 मीटर, एंड डायरेक्शन, इसका जॉब है डायरेक्शन दिखाने का, यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट यूनिट वेक्टर। जस्ट गो थ्रू दिस बनाने का है। फॉर एग्जाम्पल वी विल बी हैविंग टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। My question is to add these two vectors. If you notice it, these vectors are not in the same direction. हमने 9th में वेक्टर वैसा वाला किया था, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो भी अपन ने ऐड करने को सीखा था, सबट्रैक्ट करते थे वैल्यू। अगर परपेंडिकुलर है तो भी किया था, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया था। ठीक है, बट अभी तुम नोटिस करो यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नाइदर इन सेम लाइन, neither in opposite direction, neither in perpendicular to each other. तो क्या करने का? तो for that reason we are learning triangle law of vector addition. Now in triangle law of vector addition is the geometry part of it. This is the geometry part of it. अपन इसको draw करने वाले हैं। ठीक है, so now method is, this is a vector, this is b vector. I have taken any two vectors. Now if I want to draw, if I want to add them, सबसे पहला वेक्टर कोई भी ले सकते, ये या फिर ये। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो, इट शुड बी पैरेलल टू दिस, जो गिवन वेक्टर है उससे पैरेलल और सेम लेंथ। उसका मीनिंग हो गया इक्वल वेक्टर। इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर? इट शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इट इज एज वेल एज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने ये पैरेलल वेक्टर बनाया। ठीक है, अब मैं दूसरा वेक्टर प्लेस करने वाला हूं। While placing second vector, you have to remember that the head of the first vector should meet the tail of the other vector. This is how addition is done. क्या करने का रहता है? The head of the first vector is put up with the tail of the second vector. That is how we add them. अब मेरा ये second vector है, मैं इसको इधर put up करने वाला हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको इधर put कर सकता हूँ या फिर इधर put up कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, इधर डाल सकता हूँ, इधर डाल सकता हूँ या इधर डाल सकता हूँ, बस इसी से पैरेलल ड्रॉ करने का। टेल मी, कैन आई कीप दिस वेक्टर ओवर हियर? Yes, sir. करेक्ट और यस और नो? प्लीज Yes, sir. वेरी गुड। रीजन इसका हेड इसके टेल को मिलना चाहिए, इसका हेड इसके टेल को मिले, कॉमन सेंस। ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि हेड और टेल का मतलब क्या होता है। कैन आई प्लेस दिस वेक्टर ओवर हियर? No, sir. वेरी नाइस। रीजन इसका टेल को मैच हो रहा है। कैन आई पुट दिस वेक्टर ओवर हियर? No, sir. Yes, कैन yes, आई पुट दिस वेक्टर ओवर हियर? यस आई कैन। Yes, sir. वेरी नाइस। रीजन इसका हेड इसके इसके टेल को मैच हो रहा है। कैन आई पुट दिस वेक्टर ओवर हियर? No, sir. No, sir. No, why? Because head और head साथ में आ गए। So it's a simple geometry, but there is some brains that you need to put behind it. ऐसे अंधाधुन ड्रॉ नहीं करने का। So what we need to remember is that the head should meet the tail. So ये वाला vector I am going to put it over here. So this is A vector, this is B vector. So where is the resultant vector? Resultant vector is like a displacement. It is a distance between the starting point and the end point. Starting point and the end point. This is called as the resultant. This R vector is called as the resultant of A and B. What is the job of a resultant vector? अभी हमने resultant का definition पढ़ा था. What was resultant vector? The resultant vector of two more vectors is that single vector which produces the same effect as both of them. ये दोनों जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बाद से ये एक सिंगल वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
सो इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, या फिर वर्ड यूज करते इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, टोटल वर्ड नहीं यूज करते। टोटल वर्ड क्यों नहीं, हर बार ऐड नहीं करने वाले, कभी कभी हम लोग सबट्रैक्ट भी करने वाले, इसलिए टोटल वर्ड नहीं यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट या फिर रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? ये डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है ना। इसी डायग्राम को, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो पहले मैं ए वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, कोई भी वेक्टर पहले ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे ऐड ही करना है, ऐड ही करना है, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और सबट्रैक्शन। मैं सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट कर सकता, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो पहले मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया, अब मैं बी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। व्हेन आई एम ड्राइंग बी वेक्टर, आई विल ड्रॉ पैरेलल टू दिस, इससे पैरेलल, सच दैट द हेड शुड मीट द टेल, यानी मेरा बी वेक्टर इधर चलेगा, Yes, sir. Yes, sir. इधर चलेगा, No, sir. No, sir. बी वेक्टर इधर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इधर चलेगा क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं अभी थोड़ा अलग तरीके का बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को। तो दिस इज माय बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, देखो रे ऐसे जा रहा है, एंड ये मेरा एंड पॉइंट है। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन बराबर है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बराबर है क्या? प्लीज बी क्विक। ये डायरेक्शन बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर का? Yes, sir. ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आता है मालूम है? फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, स्टार्ट से लेके एंड, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ टेल मी, इज दिस डायरेक्शन करेक्ट? No, sir. नो, द डायरेक्शन इज रॉन्ग। रीजन, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऐसा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अनदर फिगर। Now this time I am adding not two vectors, I am adding more than two vectors. Okay, तो मेरे इस assumption के लिए a vector, b vector, c vector ऐसा लिया हुआ, ठीक है। कोई भी किधर भी ले सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो नाउ पहले a vector ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय a vector। अब मैं b vector ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। so this is b vector. I hope everyone is clear, ये बराबर है ना, करेक्ट है ना ये? Yes, sir. Yes, जैसे sir. मालूम पड़ा, हेड शुड मीट द टेल। ओके, वेरी गुड। नाउ सी वेक्टर मेरे को ड्रॉ करना है, तो आप पहले सी वेक्टर नहीं कर सकते, एक टाइम पे सिर्फ दो ही वेक्टर ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल लॉ ना। ट्रायंगल में तीन ही साइड होते हैं, दो मेरे वेक्टर है, तीसरा मेरा रिजल्टेंट है, तो मैं तीसरा ऐड नहीं कर सकता, ये तीसरा वेक्टर ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ दो ही वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए और बी ड्रॉ किया, अब मैं इसका रिजल्टेंट बना रहा हूँ। इसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? इधर से इधर, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज माय रिजल्टेंट, पर ये रिजल्टेंट को मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ, पी वेक्टर। वो मेरा आर वेक्टर नहीं है, इसका रिजल्टेंट को मैंने पी वेक्टर बोला हुआ है। इन दोनों का रिजल्टेंट को मैंने पी वेक्टर लिया। अब मेरे को पी वेक्टर सी वेक्टर से के साथ ऐड करना है। ना मेरा सी वेक्टर किधर है, जरा चेक करो, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। तो मेरा सी वेक्टर कैसे ड्रॉ करें? ये सी वेक्टर किधर ड्रॉ करें? ये सी वेक्टर किसको ऐड हो रहा है? किसको ऐड हो रहा है? नोटिस करो, किसको ऐड हो रहा है? P. ये सी वेक्टर पी वेक्टर को ऐड हो रहा है, तो मेरा सी वेक्टर मैं किधर ऐड करूं? शुड आई ऐड इट ओवर हियर? No. No, sir. क्यों? क्योंकि ये इसका जो हेड है वो इसके हेड के साथ मैच होता है, तो ये मेरा सी इधर ऐड करूं? No, sir. नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि इसका टेल इसके टेल को मैच कर रहा है, मेरे को पी के साथ ऐड करना है। हाँ? मैंने इन दोनों का एडिशन को पी लिया हुआ, मेरे को पी के साथ ऐड करना है। ए और बी को भूल जाओ, पी के साथ ऐड करना है। तो ये मेरा पी है, ये मेरा सी है, तो मैं इधर नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। कैन आई ऐड सी वेक्टर हियर? कैन आई ऐड सी वेक्टर हियर? सी वेक्टर में इधर ऐड कर सकता हूँ क्या? Yes. इससे पैरेलल, Yes, यस, sir. बिकॉज Yes, sir. इसका टेल इसके हेड को मैच कर रहा है। वेरी गुड। ये सी वेक्टर इधर ऐड कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। रीजन,
इसका हेड इसके टेल को मैच कर रहा है। ओके, वो इधर ड्रॉ करते तो कंफ्यूजन होता डायग्राम में, इधर भी चलता है इधर भी चलता। अब ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, यानी ये मेरा रिजल्टेंट है इधर से लेके इधर तक, एंड दैट इज माय आर वेक्टर। इनका एडिशन इज आर वेक्टर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस डायग्राम फॉर सबट्रैक्शन। once again, this is a vector, this is b vector. Now I want to subtract it. Now the method of subtraction is a vector plus of minus b vector. This is a vector sign. ये साइन है, ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ साइन है, ये बताने के लिए कि ये मेरा क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर नहीं है। डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, इसके लिए ये साइन को करते हैं। ओके, नाउ मैंने क्या किया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं किया, मैंने क्या किया, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर किया है। व्हाट इज प्लस इनटू माइनस, माइनस ही होता है ना। तो मैं कर तो रहा हूं वेक्टर एडिशन, मैं कर रहा हूं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बट मेरा आंसर सबट्रैक्शन होने वाला है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम रूल दैट आई स्टडीड बिफोर, वही कर रहा हूं। ठीक है, बट मेरा आंसर सबट्रैक्शन होगा। अब वो कैसे करने का, ये माइनस बी वेक्टर है, डू यू रिमेंबर मैंने कहा था माइनस बी वेक्टर कैसे लाने का, ये बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर क्या होता है, Opposite direction. वेरी गुड, सेम लेंथ but opposite direction. This is minus b vector. Okay, let's start adding it. इसको इसके साथ ऐड करना है, इसके साथ नहीं, इसका काम खत्म हो गया, इसको इसके साथ ऐड करना। आई होप एवरीवन इज क्लियर कैसे कर रहा है ऐड। ठीक है, Yes. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब ये माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है, माइनस बी वेक्टर, कैन आई ड्रॉ इट हियर? No. No. Head to head meets the head. Can I draw it here? Yes. Yes, because इसका tail इसके head को match कर रहा है। Can I draw it here? Yes. Yes. मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, वैसे किधर इधर भी बना सकते, इधर भी। आंसर दोनों भी करेक्ट ही है, रिजल्टेंट ऐसा ही आने वाला है, ऐसा ही रिजल्टेंट आने वाला है, पैरेलल ही आएगा और लेंथ भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट टिल एंड। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इधर एंड हुआ, तो एरो इधर। ठीक है, ओके, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, now let's take another figure. This is a vector, this is b vector, मेरे को a minus b करना है, so how will I do it? सबसे पहले Opposite direction. यानी माइनस बी। ठीक है, माइनस बी करना है, माइनस ए नहीं करना है, बी को माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने माइनस बी किया, मैंने कैसे किया है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइनस बी। तो फर्दर पहले ये ए वेक्टर है, अब मैं माइनस बी वेक्टर पुट अप कर रहा हूँ, so माइनस बी वेक्टर आई कैन पुट इट हियर, so this becomes my resultant vector. Now do always remember, whenever you are adding any two vectors, the head should meet the tail. Okay, but the resultant that you get where the head meets the head and the tail meets the tail. Resultant you get head meets the head and the tail meets the tail. Resultant का प्रॉपर्टी याद रखो, head meets the head, tail meets the tail. नहीं याद रखा तो भी चलेगा, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अपन ने वैसे ही नहीं याद किया, हमने कैसे याद किया है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, इसलिए इधर से स्टार्ट आएगा, इधर से एंड आएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे याद रखोगे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर, सबट्रैक्शन वेक्टर? एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. No, sir. तो अब ये वाला करो तुम, ये वाला तुम करो, कितना भी लेंथ ले सकते हो, बस डायरेक्शन ऐसा है। नोटबुक Yes, sir. Yes, sir. आंसर करेक्ट है? ओके, हियर वी आर हैविंग, लिसन टू दिस केयरफुली, OA vector and OB vector as two arms of a parallelogram. तो हमने ट्राइंगल लॉ किया था, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है,
So how to get a resultant of OA and OB using parallelogram? हमने लास्ट टाइम ट्राइंगल से ऐड किया था, अभी मैं पैरेललोग्राम से ऐड कर रहा हूँ. So this is OA, OB. How will I get a resultant by using parallelogram? So this is OB. इससे parallel vector बना. और this is OA. इससे parallel vector बना. If I take this as P vector, तो ये भी P vector हो गया. ये Q vector लिया है, तो ये भी Q vector. ठीक है, मैं टेक्सचुअल सिंबल भी रख रहा हूँ, कैपिटल Q है. ठीक है. तो अगर ये OA वेक्टर है, OB वेक्टर है, तो इससे पैरेलल इधर वेक्टर है, इससे पैरेलल इधर वेक्टर. इफ आई नेम दिस पॉइंट एज B, इफ यू नोटिस इट, OADB is a parallelogram. So this becomes my resultant. The diagonal becomes the resultant. So here R vector is equal to P vector plus Q vector. Okay. Yes. सबसे पहले, what is this? OA vector OA. Vector. and OB OB vector vector. are the adjacent sides of the parallelogram, which I am taking it as P vector and Q vector. Q vector. Okay. इससे पैरेलल वेक्टर इधर ड्रॉ करें एंड इससे पैरेलल वेक्टर इधर ड्रॉ करें. ठीक है. एज पर टेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे पॉइंट सी दे रहा हूँ. OACB is a parallelogram. So where is my resultant vector? Diagonal. The diagonal becomes the resultant vector. The angle between P and Q, I am taking it as theta. P and Q के बीच का angle I am taking it as theta. And this diagonal is my resultant vector, R vector, which is P vector plus Q. पर अब ना मेरे को ज्योमेट्री नहीं करना है, मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मुझे उसका डिस्टेंस, मुझे उसका वैल्यू चाहिए. ओके. ना वेक्टर्स बहुत सारे तरीके से डिफाइन करते हैं. वेक्टर्स को डिफाइन करने का बहुत तरीका है. फॉर एग्जांपल, आई कैन से 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, आई कैन से 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, दिस इज वन वे टू से इट. और आई कैन से 5 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री, 5 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू से इट. और देयर इज अनदर वे कॉल्ड एज IJK. ये आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तब मैं बताऊंगा, अभी हम लोग इसके डिटेल में नहीं जा रहे. सो देयर आर 3 ways to signify vectors. I can say it with the help of direction, I can say it with the help of angle, I can say it with the help of IJK. Okay, there are 3 ways. यहाँ पे मैं एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर. मेरे को है ना मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितना है, उसकी वैल्यू चाहिए. 5 मीटर, 10 मीटर, क्या वैल्यू है ना, वो वैल्यू ढूंढने का. दैट्स द रीजन वी आर डूइंग दिस डेरिवेशन. टू डू दिस आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. मैंने CD परपेंडिकुलर बनाया OA से. Now if you notice it, we have a Pythagoras theorem over here. Right triangle है. So let's apply Pythagoras theorem. Tell me. Let's apply Pythagoras theorem. Apply Pythagoras theorem. OC square. Very nice. What is OC square equal to? OD OD square 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 plus plus CD CD square. Very nice. OD square plus CD square. ये तुमने 10th में किया हुआ है, बट OD खुद क्या किसका बना हुआ है? OA plus AD. OA. Yes, very good. It is OA plus AD. Okay. So what is OA? OC square equal to OA plus AD the whole AD the whole square plus CD square. Now what is OA plus AD का whole square? What is A plus B the whole square? A A square plus 2AB plus AD square plus CD square. A square plus 2AB plus B square plus CD square. Now AD square plus CD square क्या है? AD square plus CD square क्या बनता है? AC square. AC square. So what is OC square equal to? OA square plus 2OA AD plus Plus AC. C. Since AC square is AD into AD square plus CD square.
Okay. Now let us put up the values. OC. कौन सा डिस्टेंस है ये OC? R. OC यानी मेरा रिजल्टेंट. OA कौन सा डिस्टेंस है? E. P. P square. 2 OA. P into P. AD नहीं ढूंढा, AD में थोड़ी देर बाद बताता हूँ. AC कौन सा डिस्टेंस है बताओ? Q. Q. वेरी नाइस. ये इससे पैरेलल है ना. वेरी गुड. दिस इज Q वेक्टर. तो AC स्क्वायर के बदले आएगा Q स्क्वायर. आई होप यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया. अब Yes, मेरे sir. को Yes, sir. AD का लेंथ ढूंढने का है. ना टू फाइंड लेंथ AD, सी ये एंगल थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कितना रहेगा? Theta. क्यों थीटा रहेगा? Equal. करस्पॉन्डिंग एंगल ना. पर तुमको यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री वाला वो सब स्टेप लिखने का नहीं है. कुछ स्टेप्स नहीं लिखने का, तुमको डायरेक्ट कर देगा. ठीक है. तुमको कोई पूछने वाला नहीं है थीटा कैसे आए, तुमको कैसे मालूम पड़ा थीटा है, वो तुमको पता होना चाहिए, पर तुमको लिखना नहीं है कहीं पे. सो दिस एंगल इज थीटा. नाउ वेक्टर्स का अभी से एक रूल हम लोग याद रखेंगे. इन फ्यूचर फिजिक्स में ये ट्रिक यूज करने का है. जब भी फिजिक्स में ऐसा कुछ आया तो ये ट्रिक यूज करोगे. दिस इज थीटा. ठीक है. इन फिजिक्स वी हैव अ लिमिटेशन. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट एन एंगल. अपने को एंगल में का कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो हम लोग हमेशा उसको है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, बिकॉज ये आगे जाके कई बार यूज करने का है. फिजिक्स में एनीथिंग एट एन एंगल वी नेवर अंडरस्टैंड. वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस. हम लोग ये v, ये वेलोसिटी है, ये एंगल पे, पर वेलोसिटी एट एन एंगल हम लोग नहीं समझ सकते. मैं इसको है ना ये वेलोसिटी को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ये वेलोसिटी को ब्रेक कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये मेरा वेलोसिटी है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा और मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा. तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसके साथ एंगल बनाता है ना, जिसके साथ एंगल बनाता है ना, दैट इज कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन थीटा. तो आगे जाके ये रूल ऐसे डायरेक्ट याद रखोगे. जिसके साथ एंगल फॉर्म किया कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं फॉर्म किया वो साइन थीटा है. वैसे तुम बोलोगे सर ये आया कैसे? इट्स वेरी सिंपल. ये ट्रिग्नोमेट्री है, 10th स्टैंडर्ड का है. टेल मी व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट And upon ऑन हाइपोटेनस. Up. हाँ. ठीक है. तो cos theta is adjacent upon hypotenuse. Hypotenuse VA. तो मेरा adjacent साइड कितना आया? मेरा adjacent साइड कितना आया? angle. P. cos. हो गया. पर तुम प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सर आप मेरे को ये बताओ ना, मेरे को ये वाला नहीं समझ में आया, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है. फिजिक्स कर रहे, टाइम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते बैठने का. तो ट्रिक बना लिया, आगे जाके ट्रिक यूज करेंगे. कैसे आया वो समझ में आ गया ना, ये कैसे आया समझ में आ गया ना. तो अब ये सब नहीं करने का है, तुमको सीधा सीधा ट्रिक अप्लाई करने का है. जिसके साथ एंगल बनाया दैट कंपोनेंट इज कॉस, जिसके साथ नहीं बनाया दैट इज साइन. दिस इज क्यू, ये थीटा है, मेरे को ये चाहिए. ये क्यू है, ये एंगल थीटा है, मेरे को ये कंपोनेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए. बताओ. Cos theta. बराबर. cos थीटा, जिसके साथ एंगल फॉर्म किया cos थीटा, जिसके साथ नहीं फॉर्म किया sin थीटा. पर ये Q है, तो व्हाट विल आई राइट ओवर हियर? AD एज Q Cos cos. theta. ये Q है और ये थीटा है. ये तो बोले Q cos Q. ठीक है, ये थीटा है. ठीक है. तो दिस इज Q, जिसके साथ एंगल फॉर्म किया दैट इज Q cos थीटा. जिसके साथ नहीं फॉर्म किया ना, ये वाला कंपोनेंट जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये क्या रहेगा? Sin. साइन थीटा. वेरी नाइस. जब मैं cos थीटा और sin थीटा कंपोनेंट करता हूँ ना, तो मैं ये Q निकाल देता हूँ. इसका काम खत्म हो गया. अब मैं ये कंसीडर करूंगा, ये इसको बोलते हैं कंपोनेंट. ब्रेकिंग अ क्वांटिटी इनटू टू क्वांटिटीज. आई एम ब्रेकिंग दैट क्वांटिटी इनटू टू क्वांटिटीज व्हिच आई कैन यूज सेपरेटली. जिधर मेरे को हॉरिजॉन्टल का जरूरत है मैं उधर यूज करूंगा, जिधर वर्टिकल का जरूरत है उधर यूज करूंगा. दीज आर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज फाइंडिंग कंपोनेंट. ये सारे ट्रिक्स है.
ये फिजिक्स के ट्रिक से ये अभी समझोगे, आगे जाके अप्लाई करेंगे तुम खुद बोलोगे सर ये एंगल में इसका अपन कंपोनेंट ढूंढ के सॉल्व करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो चीजें इजी करने के काम आएगा तुमको हर चैप्टर में ये चीज यूज करना ही करना है, ये करना ही है ये। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट कर लो। ओके, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यू कॉस, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यू साइन, पर यही सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ये भी वर्टिकल ही है। तो ये क्यू साइन है तो ये भी क्यू साइन ही है, ये भी क्यू साइन ही है। इज दिस क्लियर टू यू? अगर ये क्यू साइन है तो ये भी क्यू साइन थीटा ही है। ठीक है, so this is q cos theta. Now let us put up over here. मेरे को सिर्फ AD ढूंढने का बाकी था. What is AD equal to? Q cos theta. Cos theta. गंदा कर रहा हूँ. Q cos theta. So this is r square. R square is p square plus 2pq cos theta plus q square. So tell me what is r equal to square root of p square plus 2pq cos theta plus q. This is your formula for law of parallel. Easy है ना, मस्त है ना? What is OC square? OD square plus CD square. Let's start. So what is OC square? What is OD square? OA plus AD the whole plus square. Square AD. plus AD square. The whole square. Apply. OA square OA square plus plus 2 OA plus plus AD 80 square square. plus CD square. बोलो. AD square plus AC square. AD square plus CD square. AD square plus CD AC square. AC square. Square. I think सबको समझ में आ रहा है. अब वैल्यू सब Yes. OC. OC. R R R. R square P square P square P square. P square OA. P P P. P AD. Q cos cos Q cos. Q cos So this is theta. So even this angle becomes theta. जिसके साथ angle form करता है that is cos Q. Q cos Q cos This is Q. cos Q theta. cos theta. Yeah. Okay. Plus AC square. Q square Q square So what is R equal to root of? P P square square plus plus 2PQ 2 cos theta plus Q square. ये पार्ट हो गया, समझ में आ गया ना? Yes, sir. मैंने रिजल्टेंट तो ढूंढ लिया, पर मेरे को वो रिजल्टेंट का एंगल भी चाहिए. ये रिजल्टेंट क्या एंगल बनाता है वो भी चाहिए. तो एंगल या तो मैं P के साथ ढूंढूंगा या तो मैं Q के साथ ढूंढूंगा, वो चॉइस तुम्हारे साथ. तो मैंने अभी P के साथ ढूंढ रहा हूँ, L. ठीक है, और मेरे को ये एंगल ढूंढना है. So what is tan alpha? What is tan alpha? What is the formula for tan alpha? Trigonometry, triangle. Sin alpha upon cos alpha. Very nice. Now, yes. What is tan alpha equal to? Sin alpha plus. Alpha. Sorry. Cos नहीं, sin बाबा. alpha upon नहीं, cos बाबा, alpha. रुको, कुछ भी बोलते हैं ना. Tan alpha triangle में का बता. Triangle. Opposite upon Opposite. adjacent. Opposite Opposite upon adjacent. इस tan alpha का opposite side कौन है? AC. AC. इस tan alpha का opposite side AC है. नहीं CD है. CD. है. क्यों CD है? क्योंकि राइट ट्राइंगल में tan यूज होता है, इसमें नहीं यूज होएगा, इधर यूज नहीं होएगा, इधर यूज होएगा. तो व्हाट इज tan alpha? CD अपॉन एडजेसेंट OD. OD. ठीक है. ओके, नाउ बट OD किसका बना हुआ है? OA plus AD OA plus 8. ठीक है, plus 8. चलो, so what is OD equal to OA plus AD? अब CD का वैल्यू बताओ. चलो बी फास्ट. CD का वैल्यू अब भी बताओ, अब भी मैंने किया होता. Q sin theta. Q sin wow, theta. very nice, very nice. Remember, this was Q cos theta, this was Q sin theta, और यही चीज इधर आता है Q sin theta. Very nice. So what is CD equal to? Q
Q sin theta. Sin theta. OA यानी P. P P. AD यानी Q cos. Q cos. Q cos. दिस इज tan अल्फा। पर मेरे को tan अल्फा, मेरे को सिर्फ अल्फा में इंटरेस्ट है, मेरे को एंगल ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये tan इधर जाएगा, ये tan इधर जाएगा, इसको बोलते हैं tan इनवर्स। ये tan इधर जाएगा, इसको बोलते हैं tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Plus Q cos theta. cos थीटा। ठीक है, ये tan इनवर्स ढूंढने का, रिमेम्बर अपन एक tan इनवर्स ढूंढा था लास्ट टाइम, लॉग टेबल, नेचुरल साइंस, इनवर्स कैसे ढूंढते हैं याद है? Yes. उल्टा Yes, उल्टा sir. कैसे करते हैं वो हम लोग, और बहुत सारी चीजें इधर करने वाले। तो लॉगरिथम टेबल हमेशा तुम्हारे साथ में होना चाहिए whenever you are doing physics। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर?